हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम बात करेंगे मिरर्स में जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं उसके विषय में। ठीक है, न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक फार्मूला होना चाहिए। ठीक है, और फार्मूला में भी जो वैल्यूज़ आप पुट करोगे उसको डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, उस पर साइन कन्वेंशन लगा करके आप उसको वैल्यू को फार्मूला में पुट करेंगे। तो जो दो फार्मूलाज हमारे पास इस समय मिरर्स के न्यूमेरिकल को सॉर्ट आउट करने में यूज़ होंगे, दैट फार्मूलाज आर mirror formula, that is 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. Here f is focal length of given mirror, v is image distance and u is object distance. Clear? And next formula we have magnification produced by a mirror. Magnification means कि वो मिरर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को कितना बड़ा करके दिखा रहा है या फिर कितना उसको छोटा करके दिखा रहा है। दैट मैग्निफिकेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला HI बाय HO, वेयर HI रिप्रेजेंट इमेज हाइट एंड HO रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट हाइट। ओके, फर्दर मैग्निफिकेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला -V बाय U। -V means image distance, upon में U means object distance. Clear? During the solution of a numerical, ठीक है, we have an object of some height HO, ठीक है, placed at some distance U from the pole of the mirror, and image is formed. Let it be the height of image is HI and it is at a distance V from the pole of the mirror. So here we have some physical quantities like object distance U, image distance V, height of object O, height of image HI, at the end focal length. ठीक है, and what focal length of the given mirror. Clear? So these all can be calculated by the using formula, mirror formula 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, and magnification can be calculated by the formula. ठीक है, but the values of these physical quantities cannot be put directly but by applying some sign convention. तो आज हम आपको साइन कन्वेंशन बता रहे हैं इसका। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इन फॉर्मूलाज में वैल्यूज जब आप पुट करेंगे वो डायरेक्ट पुट नहीं करनी, हमें क्या लगाना है, पहले उस पर साइन कन्वेंशन लगाना है, सिचुएशन देख करके फिर उसके ऊपर बात करनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट इसमें साइन कन्वेंशन आएगी, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सभी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होंगे, पोल से। ठीक है, ये रहा पोल। क्लियर, ये रहा हमारे पास पोल। All the distances are measured from pole. Next, जो डिस्टेंस आप पोल से लेफ्ट साइड चलेंगे वो हम लेंगे नेगेटिव, और कोई भी डिस्टेंस जो पोल से दूसरी साइड है, दैट इज राइट साइड, कैन बी टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट और इमेज इवन इज अपवर्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, then its height is taken as positive. If the image or object is below the principal axis, then it taken as negative. Then the height of the object is taken as negative. Clear? So here this M represents the mirror. M represent what? Mirror. ठीक है, and P represent pole. All the distances are measured from pole. The distances measured in the left direction are taken as negative and in right direction taken as positive. ठीक है, और इवन आपको किस बात का ध्यान रखना है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट का। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट की कोई भी जब डिस्टेंस अपोजिट चलेगा वो नेगेटिव होगा, और उसके साथ साथ कोई भी डिस्टेंस जाएगा वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द साइन कन्वेंशन। ठीक है, आई रिपीट अगेन, first sign convention is what? All the distances are measured from pole, number 1, and number 2, the distances in the direction of incident light are taken as positive, और इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, the distance towards left side from pole are taken as negative,
and towards right side are taken as positive. ठीक है, height of object और image अगर वो principal axis के ऊपर है taken as positive, और अगर principal axis के नीचे है and then it will be taken as negative. So these are the sign convention. Yes, next we have magnification. Magnification पे भी sign convention applicable होगी. Magnification अगर आ जाए positive, what does that mean? That mean image is virtual and erect. Okay, if M is negative, then image is real and inverted. If M is less than 1, image size is smaller than object. If M is greater than 1, image size is larger than object. Okay, if M is equal to 1, then what? If M is equal to 1, then we have height of image is equals to height of object simply. ठीक है, height of image is equal to height of object. ठीक है, this is all about the sign conventions on focal length f, object distance u, image distance v, magnification m. ओके, तो ये सभी साइन कन्वेंशन यदि आपको आती है देन ओनली वी कैन एबल टू सॉल्व द गिवन न्यूमेरिकल रिलेटेड टू ऑप्टिक्स, बेसिकली रिलेटेड टू द मिरर्स. ओके, ठीक है. Our next topic is refraction of light. Refraction of light is basically the deviation in the path of light when it goes from one medium to another medium. For example, if a ray travel from air to glass, let it be the incident ray or incident light. At the point of incidence, draw a normal, okay, and mention angle of incidence I. Clear? Then as we know, refraction of light is basically the change in path of the light. Here this is the path which this ray should follow, but due to refraction of light the ray bend little bit towards the normal. Here we have the normal, ray is bent towards the normal, and the angle of refraction is small r. ठीक है, angle of refraction is small r. So this is well known refraction of light. Refraction of light basically क्या है बेटे? The bending of ray of light from its original path when it goes from one medium to another medium. Okay. So refraction of light में हमारे पास there are two laws basically. First is incident ray and refracted ray. This ray is basically refracted ray or refracted light. Incident ray, refracted ray and normal all lie in the same plane. All lie in the same plane. Next law we have law of refraction basically, that is sin I over sin r is equals to a constant, and this constant is basically known as refractive index.
and this refractive index is represented by small n. ठीक है. So here we have two laws of refraction of light. First law is incident ray, refracted ray and normal all lie in the same plane, and next is sin I over sin R is equal to a constant, and that constant is a refractive index and represented by small n. Clear? यस अब हम समझाएंगे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. ठीक है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे कि आपने अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा था, साइन आई ओवर साइन आर जो था वो एक कांस्टेंट के इक्वल बोला गया है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, एंड दैट कांस्टेंट इज बेसिकली नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर n. ओके. So this refractive index is basically equal refractive index small n is equal to speed of light in vacuum upon speed of light in medium. Clear? Suppose speed of light in vacuum is c, जिसकी वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए. c is what? 3 into 10 raised to power 8 meter per second. This is the value of speed of light in vacuum, and let it be v, speed of light in a given medium. So we have a formula to calculate refractive index, that is speed of light in vacuum upon speed of light in that medium, जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हो. ठीक है. For example, consider a ray travel from vacuum to given medium, let it be glass. ठीक है. तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आपको बताया गया, सीधा जाने के बजाय टुवर्ड्स अ नॉर्मल बेंट हो जाएगा रे, और एंगल बनेगा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. ठीक है. सो वैक्यूम में स्पीड लाइट का कितना है c. ये लाइट जो है कितनी स्पीड से वैक्यूम में ट्रैवल करेगा विद स्पीड ऑफ लाइट c, और इस मीडियम में कितना स्पीड होगा, लेट इट बी p. ठीक है. जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड जो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा. अगर वो जाती है रेयर से डेंसर, मैंने यहाँ वर्ड यूज किया रेयर और डेंसर. ठीक है. रेयर एंड डेंसर. Rarer medium is that particular medium in which particle of that medium is separated a distance apart, very much distance apart. ठीक है. And denser medium is what? Medium in which the distance between the particles of the medium is very less. Clear? तो ऑप्टिकल इसे बोल सकते हो आप ऑप्टिकल डेंसिटी. ऑप्टिकल डेंसिटी भी आप इसको बोल सकते हो. ऑप्टिकल डेंसिटी इज बेसिकली रेयर और डेंसर. कोई मीडियम कितना डेंसर है, कितना रेयर है. ठीक है. और डेंसर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर द पार्टिकल डिस्टेंस. अगर पार्टिकल का डिस्टेंस गिवन मीडियम के पार्टिकल का डिस्टेंस बहुत कम है तो वो ज़्यादा डेंसर होगा. फॉर एग्जांपल एयर एंड ग्लास. एयर के पार्टिकल जो हैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखते हैं आपस में, और ग्लास के पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है. सो देयरफॉर ग्लास हैज़ मोर डेंसिटी एज कम्पेयर टू द एयर. सो ग्लास की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा आएगा. ठीक है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली डेंसिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है. मोर द डेंसर ग्रेटर विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम. क्लियर? सो दिस इज अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? दो फॉर्मूले, साइन आई और साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एक ये, और जनरली वी यूज साइन आई बाई साइन आर के प्लेस पे हम यूज करेंगे एन इज इक्वल टू सी बाई वी.
Yes, we can apply the Snell's law at this given diagram, and Snell's law is what? Sin I over sin R is equal to a constant. अब constant को मैं दोबारा लिख रहा हूँ एक प्रॉपर तरीके से, that is जिस मीडियम में हम जा रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में जिस मीडियम में से आए हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये याद रखना आपने। जिस भी मीडियम में रे ट्रैवल करने वाला है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने न्यूमिनेटर देना है और डिनोमिनेटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देना उस मटेरियल मीडियम का जिसमें से आप आए हैं, ठीक है। और यू कैन राइट दिस रेशियो एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। यू कैन प्रोनाउंस दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम एक न्यूमेरिकल आपके पास आएगा एनसीईआरटी में इसी के से मिलता जुलता, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिवन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द अनदर मीडियम। तो इसको ओपन कैसे करना है वो भी मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास अगर निकालना हो तो आप इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। आप इसको ऐसे शॉर्ट आउट करोगे, सिंप्लीफाई ऐसे करोगे, ठीक है। और डायमंड का और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको गिवन करेगा स्टेटमेंट में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद डायमंड आपसे पूछेगा। क्लियर? सो अभी जब न्यूमेरिकल सेक्शन में जाएंगे तो हम इस विषय में थोड़ा और गहराई से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे लेंसेज के बारे में, ठीक है। सो लेंसेज किस में आता है? हमारे चैप्टर लाइट में लेंसेज लास्ट टॉपिक है इसमें, ठीक है। और लेंसेज जैसे कि आप डेली लाइफ में देखते भी हो, लेंसेज का हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ है। फॉर एग्जांपल कई बच्चों को स्पेक्स लगा होता है तो उसमें भी लेंस का यूज़ है, ठीक है। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सब में भी लेंस का ही यूज़ है। मैग्नीफाइंग ग्लास जो लेबोरेटरी में होता है उसमें भी लेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जैसे हमारे ग्रैंडपा और ग्रैंडमदर के जो स्पेक्स है उनमें भी लेंसेज ही लगा होता है, ठीक है। सो लेंसेज का हमारे पास बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में यूज़ है, तो लेंसेज के विषय में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, विस्तार में। सो लेंसेज बेसिकली कितने तरह के होता है, ठीक है। तो लेंसेज हमारे पास दो तरह का है, जैसे मिरर है वैसे ही लेंस है, कन्वेक्स एंड कनकेव। कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस का जो शेप है बेसिकली वो इस तरह से है, ठीक है, जिसके एजिस तो है थिन और जो मिडल है वो है थिक। और कनकेव में इसका विपरीत होगा, इसका बिल्कुल रेसिप्रोकेट होगा। इसके एजिस थिक होंगे और मिडल जो है वो थिन होगा। क्लियर? फर्दर जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं, ये सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। एक तो है बाई कन्वेक्स लेंस जिसकी दोनों ही साइडें कन्वेक्स हो। बाई मीन्स टू या बाई मीन्स बोथ द साइड्स आर ऑफ कन्वेक्स। कन्वेक्स मीन्स बाहर की तरफ उभरा हुआ। और दूसरा टाइप इसका होता है प्लेनो कन्वेक्स जिसकी एक साइड प्लेन और दूसरी कन्वेक्स शेप की हो। और एक होता है कनकेवो कन्वेक्स लेंस, ठीक है, जिसकी एक साइड कनकेव अंदर की तरफ और दूसरी साइड कन्वेक्स बाहर की तरफ। ऐसे ही कनकेव लेंस में होगा आपके पास फर्स्ट टाइप इज बाई कनकेव लेंस जिसकी दोनों साइडें कनकेव हो। सेकेंड इज प्लेनो कनकेव लेंस। प्लेनो कनकेव लेंस मीन्स जिसका वन साइड प्लेन अदर वन इज कनकेव, प्लेनो कनकेव। और एक होगा आपके पास कनकेवो कन्वेक्स कन्वेक्सो कनकेव। कन्वेक्सो कनकेव, ठीक है। इसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताइएगा। इन दोनों में आपने डिफरेंस कैसे याद रखना है कि कन्वेक्स फैमिली का जो भी लेंस होगा उसके एजेस थिन और मिडल थिक होगा, ठीक है। और कनकेव फैमिली का जो भी लेंस होगा उसके एजेस थिक और मिडल थिन होगा। ऐसे आप इसको कनकेवो कन्वेक्स है या कन्वेक्सो कनकेव है इसको आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द लेंस, ठीक है। अब लेंस के विषय में फर्दर हम बात कर लेते हैं। इसका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होगा, ठीक है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, क्या इसके नॉर्म्स है, कैसे ये इमेज फॉर्मेशन करेगा।
फॉर एग्जांपल मैं दोनों को पैरेलल में ही दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो लाइन मैंने बनाई है, दिस लाइन इज बेसिकली नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस लाइन इज बेसिकली नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस सेंटर इज बेसिकली नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इस ऑप्टिकल सेंटर के बाद हमारे पास फर्दर 2 more points आर देयर, दैट इज फोकस ऑफ द लेंस, ठीक है। फोकस कैसे हमें मालूम पड़ा, इसका फोकस है इफ आर रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी देन दीज रेज कैन बी फोकस्ड ऑन दिस पॉइंट एफ, क्लियर। और अगर यही रेज इन्फिनिटी से आए तो कनकेव के केस में तो ये क्या करेगा, एक वर्चुअल फोकस दिखा करके बिफोर लेंस इनको डाइवर्ज करेगा, तो इसलिए इसका नाम डाइवर्जिंग लेंस भी है और कनकेव लेंस भी है, ठीक है। इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर होगा इसका, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस and this is also known as diverging lens, clear. So we have two type of lenses, concave lens and convex lens. कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोला गया है क्योंकि इस पे पड़ने वाली रेज एक पॉइंट पे फोकस हो जाती है, और इसको डाइवर्जिंग भी बोला गया है क्योंकि इस पे पड़ने वाली इन्फिनिटी से आने वाली रेज जब पड़ती हैं तो आप जब वो दूसरे साइड निकलेंगे वो डाइवर्ज सिचुएशन में निकलेंगे, ठीक है। इस केस में हमारे पास रियल फोकस है, ठीक है, क्योंकि आफ्टर द लेंस बनने वाला है इमेज, और ये आफ्टर द लेंस कभी मिलेंगी नहीं, तो दे अपीयर टू मीट वर्चुअली बिफोर द लेंस। सो हेयर वी हैव वर्चुअल फोकस। अब जैसे कि आपको पता है इसमें भी एक साइन कन्वेंशन लगेगी, दैट इज ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। मिरर के केस में ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, और इन केस ऑफ लेंसेज ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। लेंस के सेंटर से फाइंड आउट होंगे हर एक डिस्टेंस यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ठीक है, फोकल लेंथ इवन। तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जब चलेंगे तो पॉजिटिव लेना है, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से अपोजिट मेजर करेंगे तो नेगेटिव लेना है। सो उसके विषय में अगर मैं बात करूँ, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस स्मॉल एफ, उसे फोकल लेंथ बोला गया है। यहाँ भी दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ एफ। So this focal length is taken as positive in case of convex lens, and this focal length is taken as negative in case of concave lens. मालूम पड़ गया, साइन कन्वेंशन लगा करके मैंने ये भी चीज़ पता करी है, फोकल लेंथ किसकी नेगेटिव होगी हमेशा और किस लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी हमेशा के लिए, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कनकेव इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। Next our topic is image formation by convex lens. Image formation by convex lens, जैसा आपने कनकेव और कन्वेक्स मिरर के किए थे, 6 केसेस किए थे कनकेव मिरर के, वैसे ही there are 6 cases image formation by convex lens। फर्स्ट हम करेंगे कन्वेक्स लेंस का, फिर उसके बाद बात करेंगे कनकेव लेंस की। तो पहला ही केस ले लीजिए, when object is at infinity. So what? Let us consider a convex lens with center optical center O, ठीक है। Here we have focus F और इसका डबल लेंथ होगा 2F, ठीक है। मैं इधर भी अगर लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये F और ये 2F, ठीक है। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो रेज कैसे आएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और कहाँ मिलेंगी, फोकस पे, ठीक है, फोकस में मिलेगी। और ये फोकस में मिलने के बाद हमारे पास हमें क्या लिखना होता है, इमेज का नेचर लिखना है। इमेज नेचर कैसे, तो हम यहाँ लिखेंगे वही 4 बातें, रियल इन्वर्टेड, पॉइंट साइज एट एफ, कहाँ बनी है, फोकस पे, एट एफ। क्लियर दिस केस इज क्लियर टू यू, ठीक है। ये केस क्लियर हो गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी वेयर द पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, ठीक है। साइज क्या है, पॉइंट साइज है, रियल है और इन्वर्टेड है, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F।
सेकेंड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, जब ऑब्जेक्ट 2f से थोड़ा दूर हो, जैसे उसमें मिरर के केस में बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर किया था, यहाँ पर हम बियॉन्ड 2f करेंगे. हियर वी हैव f एंड 2f. क्लियर? तो बियॉन्ड 2f में आप ऑब्जेक्ट को यहाँ दिखा दीजिए, लेट इट बी ए बी, ऑब्जेक्ट नेम इज ए बी. अगेन फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. और दूसरी रे आपने अब कहाँ से निकालनी है? हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से निकालनी है. रिमेंबर दिस थिंग. सेकेंड रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और स्ट्रेट जाएगी. इसमें ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है, ऑप्टिकल सेंटर ही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से रे अनडेविएटेड जो है पास होगी. सीबीएसई में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, लेंस के किस पार्ट से अगर रे हम निकालें तो वो बिना कन्वर्ज या डाइवर्ज हुए सीधे निकल जाए, तो आपका आंसर आना चाहिए था ऑप्टिकल सेंटर से. ठीक है. ऑप्टिकल सेंटर ही पूरे लेंस में एक ऐसी जगह है जहां से अगर लाइट को पास कराएं तो वो अनडेविएटेड जो है सीधे एज इट इज निकल जाएगी, चाहे लेंस कनकेव था चाहे कन्वेक्स लेंस था. ठीक है. तो ये सीधा चला जाएगा. ठीक है. अगली पैरेलल रे कहाँ जाएगी? जैसे अभी लेटेस्ट आपने पिछला केस किया था, पैरेलल रेज आएंगे तो फोकस पे जाएंगी. ठीक है. इस केस में भी क्या होगा? फोकस से कट करते हुए आगे निकलेगी. अब ध्यान से देखना बेटे, लेंस के बाद यानी रिफ्रैक्शन होने के बाद जब ये रेज आपस में जहाँ भी कट करेंगी वहीं इमेज आपने बना देना है. ठीक है. तो इमेज कहाँ बना है? ये 2f था, 2f के और f के मिड में बना है इमेज. इमेज का नाम रख दीजिए a डैश b डैश. इमेज का नाम रख दीजिए a डैश b डैश. क्लियर हो गया ये केस. इमेज के नेचर की बात कर लेते हैं. इमेज का नेचर क्या है? रियल है इमेज. जो भी बिहाइंड द लेंस बनेगा वो हमेशा रियल ही होगा. रियल है, इन्वर्टेड है, देख रहे होंगे आप, इन्वर्टेड है इमेज. ठीक है. प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड था और ये डाउन साइड है. सो रियल, इन्वर्टेड. और साइज क्या है? स्मॉल है बेटे. ऑब्जेक्ट से स्मॉल साइज है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. और अगला पॉइंट क्या लिखेंगे हम इसके पोजीशन के विषय में? बिटवीन f एंड 2f ये इमेज बनता है. ठीक है. 4 बातें होगी, 1 2 3 एंड पोजीशन 4. क्लियर है बेटे? ठीक है. ये केस हो गया. इसके बाद हम थोड़ा और इसको ऑब्जेक्ट को आगे रखें. कहाँ रख देंगे? 2f पे. ठीक है. अगला केस होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f. व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f. ठीक है. सो वी हैव प्रिंसिपल एक्सिस, देन कन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर O, f 2f, f 2f. ठीक है. पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की इस बार? 2f पे. तो फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन फोकस से कट करते हुए स्ट्रेट. अब ये वो केस है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था ना, मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बना था. तो यहाँ 2f पे है तो 2f पे ही आपने क्या बनाना है? इमेज बनाना है. तो ये सेकेंड रे जो है जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएट होती हुई. ठीक है. और ये ट्राई टू मीट इट बिलो द पॉइंट 2f. ठीक है. ये मैनिपुलेशन है, खुद करना है. ठीक है. तो ये 2f पे ही बनेगा. और नाम इसका रख दीजिए a b. तो इसका नाम होगा a डैश b डैश. ठीक है. नेचर की बात कर लेते हैं. रियल है इमेज, इन्वर्टेड है और सेम साइज है. आपकी बार सेम साइज और पोजीशन एट 2f. इमेज कहाँ बना है? एट 2f. इमेज बना है 2f पे ही. अगला केस चलते हैं. अगला केस क्या होगा? बिटवीन 2f एंड f. अगर 2f और f के बीच में हो तो इमेज थोड़ा और आगे चला जाएगा. आप देखते आ रहे हो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है इमेज जो है पीछे हटती जा रही है और अपने साइज में इंक्रीमेंट दिखाती जा रही है. ठीक है. तो नेक्स्ट केस होगा वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड f. वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f. तो ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस. Here we have lens, optical center O, 2f and f and 2f. Now the object position is between f and 2f. First ray parallel to the principal axis. ठीक है. So कहाँ से जाएगा कट करता हुआ? फोकस से. नेक्स्ट रे कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से. और ये चला गया आगे.
ठीक है, ट्राई टू मीट बियॉन्ड द 2f, 2f से थोड़ा दूर बनाना है, ठीक है। तो ये बना इमेज, लेट इट बी a एंड b, सो हियर वी हैव a डैश b डैश, क्लियर। नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज व्हाट, रियल है, इन्वर्टेड है, लार्ज देन ऑब्जेक्ट साइज, लार्ज साइज, और पोजीशन क्या है, बियॉन्ड 2f, पोजीशन क्या है इसकी, बियॉन्ड 2f, 2f से दूर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होगा, हम इसको ले आते हैं f पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट थोड़ा और आगे ले आते हैं, पोजीशन कहाँ होगी, इज प्लेस्ड एट f। नेक्स्ट केस हमारा होगा, वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट focus f, one object is placed at focus f. So let us consider principal axis and convex lens, ठीक है। This point is f, this point is 2f, f 2f, clear। Now the position of object is at f, clear। First ray parallel to the principal axis and then after reflection it goes through the focus point f, ठीक है। एंड सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से, और आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि इमेज कहाँ आएगी, इमेज इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भी बनती हुई दिखाई देगी आपको, क्लियर। सो नेचर क्या होगा, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, नीचे ही मिलेंगी जा करके प्रिंसिपल एक्सिस से, इन्वर्टेड है, रियल, इन्वर्टेड एंड लार्ज साइज, और कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी, ये हमारा हुआ फिफ्थ केस, दिस इज आवर फिफ्थ केस, ठीक है। एंड वी हैव आवर लास्ट केस, वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, बिटवीन फोकस एंड optical center, so here we have principal axis, convex lens, optical center O, focal point f, double focal length 2f, focal point f 2f, ठीक है। in this case one object is placed between f and 2f, first ray again parallel to the principal axis और फोकस से कट करती हुई स्ट्रेट, ठीक है। और सेकेंड ऑप्टिकल सेंटर से और अनडेविएटेड स्ट्रेट, ठीक है। ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है और इसको ऑब्जर्व कर रहा है, कहाँ पर, इसको एक्सट्रापोलेट कर दीजिए वर्चुअली, दे ट्राई टू मीट, और इमेज उसको कहाँ दिखाई देगा, ये, इसका नाम अगर ए और बी था तो ये बनेगा ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अब की बार रियल नहीं है, अब की बार है वर्चुअल, और सीधी है, इरेक्ट लिखेंगे तो हम, इन्वर्टेड की जगह इरेक्ट आएगा, लार्ज साइज और बिफोर लेंस, लेंस के सामने ही बनेगी, बिफोर लेंस, ठीक है। ये हुआ इसका नेचर, क्लियर। आई थिंक ऑल द केसेस आर क्लियर टू ऑल, ठीक है। सभी केसेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसको दोबारा ध्यान से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। these 6 cases are very important, ठीक है, 6th one is very important, तो इसको ध्यान से देखिए। इस केस में हमें वर्चुअल इमेज देता है एक सिचुएशन में, और ये मैग्नीफाइंग ग्लास भी है। मैग्नीफाइंग ग्लास से जब आप देखते हो तो आपको अक्षर भी, वर्ड्स भी, और छोटी चीज़ें, माइक्रो लेवल की चीज़ें जो भी है वो भी बड़ी दिखाई देती है, वो यही सिचुएशन है, यही प्रिंसिपल है उसका। आप उसको बहुत नज़दीक से देखते हो, मैग्नीफाइंग ग्लास बहुत नज़दीक से लगा करके देखते हो, तभी आपको वो चीज़ बड़ी दिखाई देती है। अगर आप उसको दूर कर दो देखने के लिए तो वो आपको इन्वर्टेड दिखा देगा, ठीक है, ठीक है बेटे, चलो ओके। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस वी हैव इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, ओके। कनकेव लेंस में बिल्कुल आसान है, ठीक है। जैसे कन्वेक्स लेंस में हमारे पास 6 केसेस आए थे, यहाँ पर हर एक केस के लिए एक इमेज फॉर्मेशन आएगा, मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज हमेशा वैसे ही बनना है। कंसिडर एन कनकेव लेंस विद ऑप्टिकल सेंटर ओ, ठीक है, और आप रख दीजिए ऑब्जेक्ट इसके सामने, ठीक है। तो फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, ठीक है। और डाइवर्ज करेगा तो ये कहाँ कन्वर्ज करता है, इस पॉइंट को आप फोकल पॉइंट एफ दे दीजिए,
ठीक है, ठीक है। और सेकेंड रे कहाँ से निकालना आपने, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगी वन डेविएटेड जाएगी, तो दिस साइड दे अपीयर टू डाइवर्ज। तो कहाँ मिलेंगे ये दोनों रेज, दे मीट एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पे आप इमेज बना दीजिए। अगर ये ए और बी था तो ये हमारे पास ए डैश बी डैश है, ठीक है, ए डैश बी डैश। बिल्कुल आसान है, ठीक है, कनकेव में तो बिल्कुल आसान है। दे डाइवर्ज एंड दे ट्राई टू मीट बिफोर द लेंस ओनली, एंड इन दिस केस वी हैव नेचर ऑफ इमेज इज नॉट रियल नाउ, वी हैव वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल है, इरेक्ट है, और साइज क्या है, स्मॉलर साइज, और स्मॉलर की जगह इवन यू कैन राइट डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मीन्स होता है वेरी स्मॉल साइज, तो बहुत ही स्मॉल साइज आएगा, डिमिनिश्ड है, और बिफोर लेंस है, बिफोर लेंस, आफ्टर लेंस नहीं बना, बिफोर लेंस है इमेज फॉर्मेशन। क्लियर? सो वट एवर भी, अगर आप ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे ले आइए तब भी सिचुएशन यही आने वाली है, थोड़ा पीछे ले आइए तब भी सिचुएशन यही आने वाली है। तो वट एवर बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑलवेज इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड एंड बिफोर द लेंस। तो इसमें हर एक केस में वही आने वाला है, ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलिए ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला कैसे लिखा जाता है, इट कैन बी रिटन एज 1 by small f is equal to 1 by v minus 1 by u. You know where f is focal length, f is what, focal length of the given lens, v is image distance and u is object distance. क्लियर? सो इसमें भी हमारे पास एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आएगा, और वो मैग्निफिकेशन होगी एच आई बाई एच ओ अगेन, ठीक है, और वी बाई यू, एच आई ओवर एच ओ एंड वी बाई यू। उसमें वी बाई यू प्लस था, सॉरी माइनस था, यहाँ हमारे पास प्लस है इस केस में, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास आ जाते हैं, लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन को फॉर अ गिवन लेंस, कि गिवन लेंस जो है हमें कितना मैग्नीफाई करके किसी इमेज को शो कर रहा है, ठीक है। एक इसमें आता है बेटे पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस एक टॉपिक है लास्ट का, पावर ऑफ लेंस, एंड व्हाट डज दैट टॉपिक, पावर ऑफ लेंस इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट। कोई लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली रेज को कितना कैपेबल है उसको कन्वर्ज करने पर, अगर वो कन्वेक्स है, और कितना उसको डाइवर्ज कर सकता है अगर वो कनकेव है। तो पावर ऑफ लेंस इज व्हाट, बेसिकली कैपेबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, ठीक है। और मैथमेटिकली पावर ऑफ लेंस कैन बी रिटन एज 1 by फोकल लेंथ। मैथमेटिकली पावर ऑफ अ लेंस इज बेसिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको फोकल लेंथ गिवन है तो उसका रेसिप्रोकल ही पावर ऑफ लेंस होता है। एसआई यूनिट होता है इसका डायोप्टर, डायोप्टर एसआई यूनिट क्या होता है इसका, डायोप्टर। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज बेसिकली डायोप्टर एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी, ठीक है। अगर आपको किसी की फोकल लेंथ गिवन है, सपोज करो 20 सेंटीमीटर प्लस में, तो उसकी पावर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल टू 1 by फोकल लेंथ। एंड रिमेंबर वन थिंग, एसआई यूनिट में अगर आपको एसआई यूनिट डायोप्टर बोला है तो एसआई यूनिट तभी निकलेगा जब वो गिवन क्वांटिटी भी एसआईज में हो। तो हमारे पास तो एसआई यूनिट में नहीं है तो सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 100 से डिवाइड करना होता है। वो 100 जो डिवाइड करते हैं वो ऊपर बेसिकली चला जाएगा, तो ये कितना आएगा हमारे पास, बेसिकली 5 डायोप्टर। तो 5 डायोप्टर इसका आंसर है, ठीक है। अगर आपको पावर ऑफ लेंस ही दी हुई हो 2.5D सपोज करो, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, फोकल लेंथ इसका रेसिप्रोकल होगा 1 by 2.5, ठीक है, ये गया ऊपर, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा वो बेसिकली आएगा, सॉरी ये आएगा आपके पास 2/5 मीटर्स में आएगा, फोकल लेंथ मीटर्स में आएगी। और अगर आपको इसको सेंटीमीटर में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 25 जा 100 और 22 40 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ आ जाएगा। क्लियर है, फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ लेंस में क्या रिलेशन है, और फॉर्मूलाज क्या है, लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द गिवन फार्मूला।